ઓમ શાંતિ. હું બ્રહ્માકુમારી ચંદ્રિકાબેન, યુવા પ્રભાગ બ્રહ્માકુમારીઝમાં ચેરપર્સન તરીકે સેવાઓ આપું છું. આજે આપ સૌને મળવાનો અવસર બ્રહ્માકુમારી સરલાબેન મહેસાણાએ મને આપ્યો છે, એની મને ખૂબ ખુશી છે. અબ્દુલ કલામ સાહેબ માઉન્ટ આબુમાં આવ્યા હતા અને એમણે પ્રેરણા આપી કે તમે કિશોરાવસ્થાના બાળકોને આ ઈશ્વરીય જ્ઞાન આપો અને એમના ચારિત્રને શ્રેષ્ઠ બનાવો. આ પ્રેરણાને કાર્યાન્વિત કરી અને ટચ ધ લાઇટ જેવા પવિત્ર અને પ્રેરણાદાયક પ્રોજેક્ટને જન્મ મળ્યો. હૃદયમાં આનંદ અને ગૌરવની લાગણી ઊભી થાય છે. આ માત્ર એક પ્રોજેક્ટ નથી, પરંતુ આવનારા ભારતના સ્વર્ણિમ ભવિષ્યનું બીજ છે. કિશોરાવસ્થા એ જીવનનો અત્યંત સંવેદનશીલ અને મહત્વપૂર્ણ સમય છે. આ વયમાં જે સંસ્કારો, મૂલ્યો ને દિશા મળે છે તે જ જીવનનો પાયો બને છે. ટચ ધ લાઇટ પ્રોજેક્ટ દ્વારા તમે વિદ્યાર્થીઓને માત્ર અભ્યાસમાં જ નહીં, પરંતુ માનવીય મૂલ્યો, નૈતિકતા, આત્મવિશ્વાસ અને આંતરિક શક્તિઓ તરફ આગળ વધવાની પ્રેરણા આપી શકશો. આ ખરેખર પ્રશંસનીય કાર્ય છે. 2004થી પ્રાયોગિક રીતે શરૂ થયેલો આ પ્રોજેક્ટ આજે સમગ્ર ભારતના હજારો સ્કૂલોમાં કાર્યરત છે અને હજારો બ્રહ્માકુમારી બહેનો એમાં સેવારત છે. આ એનો જીવંત પુરાવો છે કે સત્ય, શાંતિ અને સંસ્કારના બીજ હંમેશા ફૂલે ફાલે છે. સાચી સફળતા માત્ર સારા માર્ક્સમાં નથી, પરંતુ સારા વિચારો, સારા સંસ્કારો અને સારા ચરિત્રમાં છે. જ્યારે તમારું મન શાંત હોય, ધ્યાન એકાગ્ર હોય અને વિચારો શુદ્ધ હોય, ત્યારે તમે કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં ઉત્તમ બની શકો છો. આ પ્રોજેક્ટ તમને લાઇટ એટલે કે પ્રકાશ તરફ લઈ જઈ રહ્યો છે. એ પ્રકાશ છે જ્ઞાનનો, સકારાત્મકતાનો અને આત્મજાગૃતિનો. આ પ્રકાશને જીવનમાં અપનાવો અને તમે માત્ર તમારા પરિવાર માટે નહીં, વાલીઓ અને શિક્ષકગણને પણ તેનાથી લાભાન્વિત કરી શકશો. બાળકોને માત્ર શિક્ષણ નહીં, પણ સમગ્ર રાષ્ટ્ર માટે આદર્શ નાગરિક બનાવી શકીશું. પરંતુ જીવનની સાચી દિશા આપણે સૌએ મળીને આપવાની છે. અંતમાં મારા આશીર્વાદ છે કે તમે બધા બાળકો આંતરિક શક્તિઓને ઓળખો, સદ્ગુણોને જીવનમાં ઉતારો અને એક શ્રેષ્ઠ, કર્તવ્યનિષ્ઠ અને સંસ્કારી નાગરિક બનીને દેશનું ગૌરવ વધારો. જે તે શાળામાં આ પ્રોજેક્ટનો શુભારંભ થઈ રહ્યો છે ત્યાંના સન્માનનીય પ્રિન્સિપાલશ્રીને, શિક્ષકગણને તથા આખા સ્ટાફને હું મારી શુભકામનાઓ પાઠવું છું, અભિનંદન આપું છું, ધન્યવાદ કરું છું. ઓમ શાંતિ. ओम शांति. विश्व नवरचयिता, सर्वशक्तिवान, सर्वगुणों की खान, ऐसे परम पिता परमात्मा, परम शिक्षक, परम सद्गुरु एवं स्कूल के ट्रस्टी श्री, आचार्य श्री
बहु प्रतिभा प्राप्त किए हुए सारे गुरुजन और साथ साथ हमारे बच्चे जो आने वाले भविष्य के नवनिर्माता हैं, हमारे आने वाले भविष्य की शान है, हमारे भारत की बागडोर जिसके हाथ में हम सौंपने वाले हैं, ऐसे आने वाले श्रेष्ठ नागरिक। स्कूल के अंदर हम सब ने साथ मिलकर 2 साल का सफ़र तय किया है। युवा प्रभाग का प्रोजेक्ट है टच द लाइट। इस टच द लाइट के अंदर हम प्रकाश की ओर जा रहे हैं, यानी कि जीवन के अंदर मूल्यों का अंधकार से हम नई रोशनी की ओर जा रहे हैं। ये प्रोजेक्ट को हमने स्कूल के अंदर 2 साल पूरे किए हैं और इस प्रोजेक्ट की आवश्यकता इसीलिए हुई है क्योंकि आज हम सभी जानते हैं कि धीरे धीरे बच्चों के अंदर पॉजिटिविटी कम होती जा रही है और नेगेटिविटी आती जा रही है। मोबाइल एडिक्शन बढ़ रहा है, बच्चों के अंदर एकाग्रता की कहीं ना कहीं कमी महसूस हो रही है, उसके अंदर दृढ़ता भी कम होती जा रही है। ऐसे अनेक कारण हैं जो बच्चों के अंदर धीरे धीरे बदियों के रूप में आ रहे हैं। जैसे कैंसर होता है, धीरे धीरे करके वो पूरे शरीर में फैलता है, वैसे ही अवगुण है या नेगेटिविटी है आज छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में घर करती जा रही है। इन सब से बचे रहे और उनका जीवन श्रेष्ठ बने, क्योंकि कहा जाता है कि विद्यार्थी जीवन एक सुवर्ण काल होता है और ये वे छोटे बच्चे हैं जिनकी प्लेन स्लेट के अंदर हम जो चाहे वो लिख सकते हैं। उनकी बुद्धि है वो इतनी छोटी होती है, वो अच्छे बुरे की पहचान नहीं कर पाती है, उनको कुछ गलत करना नहीं होता है, लेकिन बच्चे की सही समझ न होने के कारण वो कुछ ऐसा करते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। इसीलिए इस प्रोजेक्ट के द्वारा हम बच्चों को अलग अलग विषयों पर समझाते हैं, जैसे कि अनुशासन। जीवन के अंदर हमारी जो नींव है वो अनुशासन है। स्कूल में बच्चे यूनिफॉर्म में आए, शांति से पढ़े, जब टीचर क्लास में आए तो शांति से वो एकाग्रता से पढ़े। जीवन के अंदर जो सारी दिनचर्या होती है उसके अंदर कब खेलना है, कब सोना है, कब खाना है, कब उनको पढ़ाई करनी है, उनका भी अनुशासन हमने बच्चों में सिखाया। साथ साथ वाणी हमारे जीवन का एक व्यक्तित्व प्रदान करता है, तो वाणी के अंदर अनुशासन माना कैसे शब्द हमें बोलने चाहिए और कैसे शब्दों का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए, वो भी बच्चों को सिखाया। व्यवहार के अंदर अनुशासन अर्थात हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए, बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनके सामने हम कैसे शब्द बोल सकते हैं और कहाँ बोल सकते हैं, वो भी बच्चों को हमने सिखाया है। साथ साथ हमारे जीवन की अनमोल गिफ्ट है वो है धैर्यता। हर कार्य विद्यार्थी जीवन में अगर हम धैर्यता से करते हैं तो जीवन में सफलता पाते हैं, क्योंकि कई बार हम आवेश में आकर या उतावलेपन में कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो सारी जिंदगी हमें पछताना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है धैर्य का फल मीठा। हर कार्य के अंदर निष्फलता मिलने के बाद भी हम अपने धैर्य को बरकरार रखकर हम आगे बढ़ सकते हैं। और विद्यार्थी जीवन में सबसे बड़ी चीज़ है वो एकाग्रता है। तो बच्चों को हमने सिखाया कि मन और बुद्धि के ऊपर हम कैसे कंट्रोल पाकर उनको शांत रख के एकाग्र करके हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि कई बार होता है कि हम 4 घंटे पढ़ते हैं लेकिन याद कुछ नहीं रहता है, क्योंकि हमारी एकाग्रता नहीं थी। हम भले 1 ही घंटा पढ़े लेकिन वो एकाग्रता से हम पढ़ते हैं तो जो पढ़ा हुआ होगा वो याद रह जाता है। और साथ साथ हमने बच्चों को ये भी सिखाया कि जीवन के अंदर सहनशीलता है वो एक शील है, एक शान है, एक शहंशाह बनाती है। कई बार होता है कि बच्चों को हम कुछ कहते हैं सामने से उत्तर आता है, क्योंकि आज धीरे धीरे बच्चों के अंदर सहनशीलता कम होती जा रही है। हमने उनको सिखाया कि कई बार हम सच होते हुए भी उस बात को हम कुछ देर के लिए चुप रहकर अच्छी तरह से समझे। हर जगह पर झगड़ा करना, आवेश में आ जाना ज़रूरी नहीं होता है। उस बात को हम सहन करके उसकी बात के तय तक जाकर उस बात को समझे कि उसमें नुकसान हमारा है या सामने वाले का है, क्योंकि हम जानते हैं और हमारा विषय भी था कि सदा मुस्कुराते रहिए। हमेशा जीवन के अंदर आपने देखा होगा कि कोई अचानक आपको बोल दे कि गुस्सा करो, तुम गुस्सा नहीं कर सकते,
लेकिन कोई अचानक बोल दे कि आप मुस्कुराओ तो मुस्कुरा सकते हैं। उसका अर्थ होता है कि हम 24 घंटे गुस्से में नहीं रह सकते, लेकिन हम 24 घंटे मुस्कुरा सकते हैं। तो बच्चों को जब ये सीखा है कि जब सहनशील बने हम, तो कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जो हमारे मुताबिक नहीं होती, लेकिन उस बात को हम कुछ देर के लिए अपने में समाएं और मुस्कुराते हुए चेहरे से उसको लेट गो करें। जैसे एक पत्थर होता है, उसको खाने से ही लाया जाता है, लेकिन उस पत्थर को धीरे धीरे वो शिल्पकार तराशता है। कई चीज़ें उसे सहन करनी पड़ती हैं, लेकिन वो पत्थर जब मूर्ति का आकार लेता है और उस मूर्ति को जब हम मंदिर में रख देते हैं, लाखों लोग उसके चरण स्पर्श करते हैं, लेकिन वो तब हुआ जब उस मूर्ति ने, उस पत्थर ने बहुत कुछ सहा। वैसा ही जीवन है कि हम चुप रहकर वेट एंड वॉच रख के हम आगे बढ़ सकते हैं। साथ साथ बच्चों के अंदर सबसे बड़ी बात ये सीखी कि संकल्पों में दृढ़ता होना बहुत ज़रूरी है। हर बात हम सफल हुए ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम निष्फल भी हुए तब भी दृढ़ संकल्प करें कि मैं कर सकता हूँ, मुझे सब कुछ आता है और मैं हर कार्य में सफल होने के लिए ही इस धरा पर आया हूँ। निष्फलता जीवन का अंत नहीं होती है, निष्फलता आगे बढ़ने की एक सीढ़ी होती है। तो कोई भी कार्य करने से पहले हम दृढ़ संकल्प रखें, क्योंकि दृढ़ता ही सफलता की नींव होती है। साथ साथ आज के समय के अंदर सबसे बड़ी ज़रूरत है वो है हमारे जीवन के अंदर बुरे की और अच्छे की पहचान। बच्चों को ये नहीं होता है कि ये गलत है या सही है। जब हम लोग समझा रहे थे तब कई चीज़ें हमने भी नोट की, कई शब्द ऐसे नोट किए जैसे कि दूसरों की निंदा करना। हम बड़े लोग समझ सकते कि निंदा शब्द का अर्थ क्या होता है, लेकिन जब हम बच्चों को समझा रहे थे, वो निंदा करते हैं, लेकिन निंदा शब्द क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है, वो उनको नहीं पता है। मतलब कहने का कि बच्चे कोई गलत बात भी कर रहे हैं तो उसको ये नहीं मालूम है कि ये गलत है या सही है, क्योंकि इन छोटे छोटे दिमागों के अंदर हमने जो बिठाया है वही वो प्रत्यक्ष कर रहे हैं। हम अगर सही बिठाएंगे तो सही जाएंगे, क्योंकि हम बड़े होकर आज जिस बात को फेस कर रहे हैं, जिसके सामने हमारा मन से हम लड़ रहे हैं, वो बात अगर हम इन बच्चों को सिखाएंगे तो आगे जाकर ये बहुत आगे जा सकते हैं, क्योंकि आने वाला समय है वो अति विपदा वाला होने वाला है। आज भी हम देख रहे हैं कि कलयुग के अंतिम चरण में है, जहाँ चारों तरफ बुराइयाँ फैल रही है, और ये आज के छोटे बच्चों के हाथ में हमने जो मोबाइल थमा दिया है, उससे तो उनका मन अति विकृत हो रहा है। जो चीज़ें आज हम बड़े होकर जानते हैं, वो चीज़ें आज छोटे छोटे दिमाग में अच्छी तरह से बैठ गई है। उसको निकालने के लिए उन बच्चों को हमें बुक्स की तरफ ढालना होगा, अच्छी बातों की तरफ डालना होगा। इसीलिए आप पेरेंट्स भी थोड़ा ध्यान दीजिए, बच्चों के सामने मोबाइल का कम यूज़ कीजिए। उनके सामने ऐसे शब्द आप भी प्रयोग न करें जो वो बच्चे सीखें, क्योंकि इन बच्चों के सामने हम टीचर्स या आप पेरेंट्स, दादा दादी आदर्श होते हैं। हम जो करते हैं बच्चे वही बात को सीखते हैं। इसीलिए हम भी मोबाइल का कम यूज़ करें। अगर हम मोबाइल उनको देते भी हैं तो आप वॉच रखें कि वो बच्चे उसमें क्या देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात हमने भी एक नोट की है। हमने जब बच्चों को पूछा कि आप खुश हैं, तो इतने छोटे छोटे बच्चे कहते हैं वैसे तो हम खुश हैं, लेकिन एक बात की आज भी हमें तकलीफ़ होती है कि हमारे पेरेंट्स हमको टाइम नहीं देते। इसीलिए हम अपने फ्रेंड्स को बताते हैं, कई चीज़ें वो छुपाते हैं। सच बोलने की ताकत हमने तो सीखा ही है, लेकिन आपको भी ध्यान देना होगा। सच बोलने के लिए आपको उनके साथ फ्रेंड की तरह बिहेव करना होगा, क्योंकि जब हम उनको डांटते हैं तो सच बोलने की बजाय छुपाना जानते हैं। वो सीख जाते हैं कि अगर सच बताया तो हमें या तो मार मिलेगी या तो पनिश होगा। इसीलिए धीरे धीरे वो बातें छिपाने लगते हैं। लेकिन जब वो गलत भी कोई कार्य किया हो और सच बताते, उस समय आप उसको सपोर्ट कीजिए, उसको बताइए कि कोई हर्जा नहीं, कल ठीक हो जाएगा। ऐसे करके पहले उनका विश्वास जीतिए, फिर वो हर बच्चा अपनी हर बात को बताता है। इसीलिए उनका विश्वास जीतने के लिए उनके साथ एक फ्रेंडली बिहेव कीजिए। और साथ बच्चों ने हमने दोस्त के बारे में बताया, मित्र बनाने की कला। हम जब पहली बार स्कूल में आए थे तो हमारे मम्मी पापा ने भी हमको शिक्षा दी थी,
और जब बच्चे आए तो आपने उनको शिक्षा दी होगी कि बच्चे हमेशा अच्छे का संग करना, मतलब कि हम मित्र बनाने की कला सिखाई। कैसे मित्र होने चाहिए? मित्र ऐसे होने चाहिए कि अगर हम कुछ गलत भी करते हैं तो उसमें हमें सपोर्ट ना करें, वो गलत को गलत बताए। और दुनिया के अंदर सबसे बड़ा अच्छा और सच्चा मित्र है, वो है खुदा, यानी कि भगवान। क्योंकि भगवान में ऐसी शक्ति है जो दुनिया के किसी भी मित्र में नहीं हो सकती है। वो हमेशा साथ देता है। मित्र ऐसा होना चाहिए जो हमारे अच्छे और बुरे वक्त में साथ रहे। मित्र ऐसा होना चाहिए जो हर बात को बहुत अच्छी तरह से हमें समझा सके। इसीलिए मित्र कैसे हो वो भी हमने बच्चों को सिखाया है। तो हमें मित्र की भी पहचान मिली। दुनिया के अंदर एक और उसूल है, कर भला तो होगा भला। छोटे बच्चे हैं, कई बार वो रिवेंज पर आ जाते हैं। किसी ने कुछ किया होगा तो पूरा ग्रुप मिलकर सोचेगा हम भी ऐसा करें। लेकिन हमने बच्चों को समझाया है कि नहीं, हम आज कोई गलती करते हैं, वो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, साल, 2 साल या 5 साल के बाद भी हमारे सामने आती है। इसीलिए हमें किसी से रिवेंज नहीं लेनी है, हमें उसको छोड़ देना है। क्योंकि जो करता है वही भरता है। इसीलिए हमें हर एक के साथ अच्छा व्यवहार करना है, मदद करनी है। क्योंकि आज हमने जो ये दुआ का एक सिक्का जमा किया, किसी को मदद की, वो कल हमें कहीं ना कहीं जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेगी। इसीलिए हर एक के साथ अच्छा करना है। जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण हम देखते हैं। मेरे हाथ में ब्लैक बॉल है, मैं बहुत स्पीड से सामने की दीवार पर जब फेंकूंगी तो हम सभी जानते हैं वही स्पीड से वही ब्लैक बॉल मेरे पास आता है। कहने का भाव है हम जैसा करते हैं वैसा हम पाते हैं। तो हमने बच्चों को सिखाया कि हमेशा हर एक के साथ अच्छा करते चलो। आज नहीं तो कल या तो वो सुधर जाएगा या तो हमारे सामने हमेशा अच्छा आएगा। दूसरा विशेष खास जीवन के अंदर जो जरूरी है वो है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हम गॉगल्स पहनते हैं, ये हमने मान लो ब्लैक पहना है तो पूरा ब्लैक दिखाई देगा, येलो होगा तो येलो, यानी कि हम जैसा देखते हैं वैसा बनते हैं। मैंने पहले भी बताया कि छोटे छोटे बच्चे के दिमाग के अंदर वो जैसा देखते हैं, सुनते हैं, वैसा वो बन जाते हैं। तो बच्चों को सिखाया हमने कि बाहर की दुनिया के अंदर कुछ भी हो रहा है, आप अपने विवेक का यूज कीजिए। आप अपने आप से पूछिए कि ये सही है, गलत है, ये मेरे लिए ठीक है या गलत है। क्योंकि विद्यार्थी जीवन एक ऐसा जीवन है जिसमें पूरे जीवन की नींव पड़ती है। आपने भी देखा होगा कि पहली बार पहला शिक्षक जो बाल मंदिर में हमको मिला था, उसने जो सिखाया वो आज भी हमें याद है। वो हमने पहला एक ही कूटा होगा, लेकिन वो 10वीं में जो पढ़ाते उस शिक्षक से ज़्यादा उनका महत्व होता है। वैसे ही छोटे बच्चे के अंदर हमें ये भी डालना होगा कि बच्चे हमें क्या देखना है, क्या सीखना है। हमने तो सिखा दिया है, लेकिन ये वैकेशन चल रहा है। वैकेशन के अंदर बच्चे कुछ भी कर सकते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, खेलते हैं, मना नहीं कर सकते, लेकिन वो बुरी चीज़ों से बचकर रहे वो आपको ध्यान रखना होगा। क्योंकि हमने जो सिखाना था वो हमने सिखाया। टीचर्स जो गुरुजन जो स्कूल के अंदर बाह्य जगत में काम आए, यानी कि वो जॉब कर सके, वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज में बॉस बने या कुछ भी बने, उसके अंदर वो टिक सके, उसके लिए उन्होंने मेहनत की है। लेकिन वो जिस जगह पर अपना व्यक्तित्व प्रदान करे, यानी कि वो बॉस बने या कुछ भी हो, वहां जाकर किस रीति से उनके वर्कर के साथ पेश आए वो हमने सिखाया है। आप भी अनुभवी होंगे। आप जहाँ जॉब करते हैं वहाँ का बॉस अच्छी तरह से, निर्माणता से, प्यार से आपके सामने पेश आता है तो आप कुछ अच्छा करने के लिए आप भी तत्पर रहते हैं। तो बच्चों में हमने नेतृत्व कला भी सिखाई है कि कैसे हमें अपने आप को हमेशा एक लीडर के रूप में रखना है। लीडर को हमेशा ध्यान रखना है कि हम कुछ गलत ना करें। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो बच्चों को हमने सिखाई है, क्योंकि आने वाले भविष्य का दिग्दर्शक ये होंगे। हम सब ये सपना देख रहे हैं कि भारत विश्व गुरु बने, लेकिन ये सपना हम सिर्फ देख सकते हैं, साकार होता हुआ हम शायद देख न पाए। जो ये बच्चे देखने वाले हैं और विश्व गुरु तक ले जाने वाले भी ये बच्चे ही होंगे। तो आने वाले भविष्य की नींव जिसके हाथ में हम
देने वाले, इस बागडोर के नाविक वो बनने वाले, उसको हम अच्छी तरह से तराश कर बिठाएंगे तो मेरा और पूरे विश्व का जो एक आश लिए हम चलते हैं, क्योंकि जीवन एक वरदान है। इस वरदानी जीवन के अंदर हमारे बे पहलू होते हैं। जहाँ से जन्म शुरू होता है, जीवन चलते चलते मृत्यु तक हम जाते हैं। हम सभी बड़े जानते हैं कि जब अंतिम श्वास चलता है उस समय शायद हमने ऐसा सोचा कि काश मैंने इतना कर लिया होता, काश मैंने ये कर लिया होता, काश मैंने यह नहीं किया होता। ये अफसोस वाला हम जीवन न जिए। इसके लिए बच्चों को हमने अभी से सिखाया है कि जीवन एक वरदान है, उस वरदान के रूप से हम जिए, सबको क्षमा करते चले, सबके साथ भलाई करते चले। मेरे जीवन में सबसे जरूरी प्रेम और शांति है तो हम दूसरों को देते चले। ऐसे कई सारी चीज़ें हमने बच्चों को सिखाई है, क्योंकि आने वाले भविष्य की बागडोर इन बच्चों के हाथ में है। भारत विश्व गुरु बने वो सपना हमने देखा है। शायद वो सपनों को साकार करते हुए मैं देख भी न पाए, लेकिन ये बच्चे आने वाले भविष्य को तराशने वाले, इसीलिए उनको तराशना वो हमारा फर्ज है। बच्चों के अंदर ये नैतिक शिक्षाएं होगी, मोरल वैल्यूज होंगे, तो मेरी पूरा विश्वास है कि आने वाला समय बहुत अच्छा होगा। हम सब जानते हैं कि कलयुग का अंतिम समय चल रहा है, जहाँ चारों तरफ अशांति, टेंशन, हाहाकार है, लोग लड़ रहे हैं, एक दूसरों को मारने पर आए हुए हैं। ऐसे समय में हमारे बच्चे के जीवन के अंदर शांति बनी रहे, वो सबको प्रेम करता चले और अपने जीवन की वैल्यू को समझे, वो हमने सिखाया है। उनके गुरुजनों ने उस बच्चों के अंदर आने वाले समय के अंदर समाज में टिक सके, इस कंपैरिजन और कंपटीशन के ज़माने में टिक कर वो समाज के अंदर अपना जीवन निर्वाह कर सके, ऐसी बातें टीचरों ने सिखाई। आप भी जानते होंगे, जैसे हमारा एक बॉस होता है, अगर वो अच्छे व्यवहार हमारे साथ न करे तो सबका प्रिय नहीं बनता है। लेकिन हमने बच्चों को सिखाया है कि आगे जाकर शायद आप कुछ ऊंची स्टेज पर आ जाओ, आप शायद लीडर बन जाओ, तो लीडर के अंदर क्या खूबियाँ होनी चाहिए। एक लीडर, अच्छा लीडर वही बन सकता है जो सामने वाले की भावनाओं को समझे, उसकी मनोदशा को समझे, उनके कार्य का वैल्यू करे। ऐसी कई सारी चीज़ें बच्चों को हमने सिखाई है। आशा करती हूँ कि आने वाले समय के अंदर ये बच्चे आगे जाके इस भारत का नाम रोशन करें। इस भारत को हमेशा सब महान पुरुषों ने गौरववंत रखा है, इसमें से एक आपका बच्चा शामिल हो, ऐसी मेरी आशा है। स्कूल का नाम रोशन हो। सबसे महत्वपूर्ण आप सब पेरेंट्स होते हैं, जो बच्चों के लिए भगवान का रूप ही होता है। आप भी अपने घर में इन बच्चों का 1.5 मास या 1 मास आपके पास है, आप भी ध्यान रखिएगा कि हमने जो सिखाया है वो बच्चे घर में भी उनका पालन करें। हमने उनको सिखाया है कि मन को शांत रखने के लिए सुबह उठकर 5 मिनट आप मेडिटेशन किया कीजिए, और रात को सोते समय भी दिन भर जो कुछ होता है हमारे जीवन में, शायद मान लो मैंने किसी से लड़ाई की, बैड वर्ड्स बोले, तो वो भगवान के साथ हम शेयर करें, क्योंकि हमने सिखाया है कि भगवान सबसे अच्छा दोस्त है। वो हमें माफ़ भी करता है और सारी शक्तियाँ भी देता है। हर जीवन की हर परिस्थिति के अंदर वो हमारे साथ रहता है। तो ऐसे दोस्त को हम पूरे वैकेशन दरमियान साथ रखकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएंगे। तो आप सबके लिए भी एक खुशखबरी है कि हम अभी 1 साल इन बच्चों को पढ़ाएंगे। ये मोरल वैल्यूज़ अभी हम इन बच्चों को आगे के वर्ष में भी हम पढ़ाने वाले हैं। आपसे सिर्फ हम एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अगर आपका कोई सुझाव हो तो अवश्य हम तक भी पहुंचाइए, जिस वजह से हम आगे के लिए अच्छे से अच्छे कार्य के अंदर बच्चों को अच्छी तरह से समझा सकें। तो बस मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि हम सब साथ जुड़कर, आप पेरेंट्स, टीचर, सब साथ मिलकर आने वाले स्वर्णिम भारत का नवनिर्माण करने के लिए हम सब साथ जुड़ेंगे। सिर्फ हमने ये 2 साल का सफ़र तय नहीं किया है, हमारे साथ इन गुरुजनों ने भी किया है। तो इस बार हम आशा रखते हैं कि आप पेरेंट्स भी हमारे साथ इस सफ़र में जुड़ेंगे, तो अवश्य हमारा जो सपना है वो अवश्य साकार होगा और विद्यार्थी काल
इनका एक स्वर्ण बन जाएगा। तो आप सभी को भी हमारे साथ जुड़ने के लिए आमंत्रित है और फिर से कहती हूँ कि अगर कोई सुझाव हो तो अवश्य हम तक पहुँचाए। ओम शांति। ओम शांति। जीवन जीने की कला सिखाने वाले परम शिक्षक परमात्मा, संस्कारों का सिंचन कर बच्चों को योग्य नागरिक बनाने वाले सर्व गुरुजन, प्रिंसिपाल श्री, गुरुजनों की आज्ञा को पालन कर अपने जीवन को सुसंस्कारित बनाने वाले प्यारे बच्चों, ज्ञान, प्यार और पालना से अपने बच्चों को सदा आगे बढ़ाने की भावना रखने वाले प्यारे माता पिता, ब्रह्मा कुमारीज की भगिनी संस्था राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन अंतर्गत युवा प्रभाग का प्रोजेक्ट टच द लाइट, जो हजारों स्कूलों में 2004 से चल रहा है। टच द लाइट प्रोजेक्ट क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, वो आज हम सुनेंगे। टच द लाइट जो प्रोजेक्ट है वो बच्चों के अंदर मनोबल बढ़ाता है, और अगर बच्चों का मनोबल मजबूत होता है तो वो हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में सफल होता है। जो आप सब माता पिता और टीचर की आशा है कि हमारे बच्चे आगे बढ़े, निर्भय बने, सफल बने, सदा खुश रहे, यही आशा को पूर्ण करने के लिए यह प्रोजेक्ट ब्रह्मा कुमारीज द्वारा 2004 से चल रहा है। आशा है कि आप सब भी इस प्रोजेक्ट को अवश्य अपने स्कूलों में अपने बच्चों के लिए जरूर अप्लाई करेंगे। वो बहुत आवश्यक है। आप सब एक बार उसे जरूर पढ़ना। टच द लाइट की जो बुक है वो भी आप जरूर पढ़ें। और हम भी ब्रह्मा कुमारीज की संस्था में से हफ्ते में एक बार स्कूलों में जाते हैं, जैसे करवे है, सार्वजनिक है, एक्सोटिका है। हफ्ते में एक बार जाकर बच्चों से मिलते हैं, और वो पढ़ाई जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं वो तो उन्हों को पढ़नी है, वो नहीं छोड़नी है, लेकिन वो जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं उसमें वो निर्भय कैसे बने, आत्मविश्वास रखकर वो कैसे पढ़े अच्छी तरीके से और आगे बढ़े। जो आप सबकी आशा है वो पूर्ण करता है टच द लाइट। टच द लाइट, उसका मीनिंग हम सुने। अपनी लाइट को टच करे। जो लाइट मेरे अंदर है, हर बच्चे के अंदर अपनी लाइट, अपनी शक्तियाँ पहले से ही मौजूद है, लेकिन आजकल जो बच्चों में डर है, मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरे से ये नहीं होगा, बात में वो डर जाते हैं, उसकी वजह से वो असफल होते हैं। और जो वो सफलता पाने चाहते हैं, आज मेहनत नहीं करते ऐसा नहीं है, बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप सब भी अनुभवी हो, टीचर भी अनुभवी है, आप भी बहुत उनके पीछे बहुत मेहनत करते हो। माता पिता की जो आशा है, मेरा हर बच्चा आगे बढ़े, सदा खुश रहे, हर परिस्थिति में वो टिक कर रहे, मजबूत बनकर रहे, वो आपकी आशा पूर्ण करता है टच द लाइट। अपनी आंतरिक शक्तियों को वो जगाता है, और साथ साथ जो सर्वांगीण गुण अपने अंदर है उसे जगाता है, जैसे प्रेम है, क्षमा है, दया है, आनंद है, खुशी है। उन गुणों को बच्चों को परिचित कराता है, और बच्चे उन गुणों सहित वो जीवन तो जिएंगे, पढ़ाई भी जरूर पढ़ेंगे, लेकिन गुणों को लेकर पढ़ेंगे तो वो जरूर सफल होंगे। तो सफलता की सीढ़ी पर चढ़ाने का कार्य करता है टच द लाइट। जैसे कि हम देखें, आप सबकी आशा है कि मेरा हर बच्चा सफल बने। 2 बच्चे हैं, एक बच्चा पढ़ने में बहुत होशियार है, अच्छे मार्क्स से हर सब्जेक्ट में पास होता है और उसका रिजल्ट बहुत ऊंच है। दूसरा बच्चा उसके साथ ही है, उसके क्लास में ही है, लेकिन थोड़ा पढ़ने में उससे थोड़ा पीछे है। और आज आप कहेंगे सफल कौन है दोनों में से? जो बच्चा फर्स्ट नंबर लाता है लेकिन वो थोड़ा गुस्से वाला है, छोटे बड़ों का मान नहीं रखता है, बात में गुस्सा करना, अपना थोड़ा ईगो आ जाता है छोटी छोटी बात में, मैं कुछ हूँ, मैं ये कर सकता हूँ और किसी को कुछ नहीं आता है। दूसरा बच्चा भल उससे थोड़े कम मार्क्स है
लेकिन वो सबका रिस्पेक्ट करता है, सबके साथ प्यार से बात करता है, हर सिचुएशन में निर्भय होकर चलता है, हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट होता है। और आप दोनों आपकी नज़र में जो दोनों बच्चे हैं, तो आप किसको सफल कहेंगे? आज सारी दुनिया, जो हम सब भी बोलते हैं कि ये व्यक्ति सफल है, क्यों सफल है? पढ़ाई में तो वो आप पहले नंबर को कहेंगे या दूसरे नंबर को सफल कहेंगे? आप जरूर कहेंगे फर्स्ट नंबर का बच्चा जरूर पढ़ाई पढ़ने में बहुत होशियार है, दूसरे नंबर का बच्चा थोड़ा कम पढ़ने में है, लेकिन उसके आंतरिक गुण बहुत अच्छे हैं जो सारी दुनिया को आकर्षित करते हैं, और वो एक सितारा, चमकता हुआ सितारा बनके सारी दुनिया के सामने प्रत्यक्ष होता है और सभी बोल उठते हैं, सचमुच ये बच्चा बहुत अच्छा है, उसका नेचर बहुत अच्छा है, वो हर सबके साथ जो बात करता है कितनी प्यार से, नम्रता से, उसका चेहरा कितना मुस्कुराता हुआ रहता है, आप भी उसे सिलेक्ट करते हैं। ऐसे ही यही लक्ष्य है टच द लाइट का। टच द लाइट के अंदर जो अंदर की विशेषताएं, अंदर की शक्तियां है, बच्चे भी वो बाहर लाना चाहते हैं। मैं भी सबके बीच में बोल सकूं, मेरे मार्क्स भी बहुत अच्छे आए, मैं भी सबका आदर करूं, सबकी आशय, सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं, सभी चाहते हैं, लेकिन वो करने की शक्ति जगाता है टच द लाइट प्रोजेक्ट। मैं भी अपना खुद का अनुभव सुनाऊं। जब मैं छोटी थी, जब मैं पढ़ती थी, तो मेरे में थोड़ा आत्मविश्वास कम था। मुझे आता था, मैं बोल सकती थी, लेकिन आत्मविश्वास कम होने की वजह से, डर होने की वजह से मैं थोड़ी पीछे रह जाती थी। मैं नहीं कर सकती, मेरे में विशेषता नहीं है, मेरे संकल्प थोड़े नेगेटिव चलते थे। फिर जब मुझे 10वीं कक्षा से यह ज्ञान मिला, तब पता चला कि सचमुच मेरे अंदर भी यह कला है, मेरे अंदर भी यह विशेषता है। उसको पहचानने की कला सिखाई इस नॉलेज ने, टच द लाइट ने। और फिर मुझे मेरे अंदर की जो विशेषता थी उसको मैंने पहचाना। इसी रीति से आपके बच्चे भी अपनी विशेषता को जानेंगे और आगे बढ़ेंगे, हर कदम में सफलता को पाएंगे। उनके जो गुण जागृत होंगे, सबके प्रति व्यवहार उनका अच्छा बनेगा, छोटे बड़े का जो रिस्पेक्ट करेंगे, बड़ों की दुआएं मिलेगी, माता पिता, बड़ों की, अपने दोस्तों के साथ कैसे व्यवहार करना है, आदर, सम्मान, रिस्पेक्ट, सबके साथ कैसे चलना है, वो सब कुछ सिखाता है टच द लाइट। और उससे जो दुआ मिलती है बच्चों को, दुआ के कारण कम मेहनत में सफलता ज़्यादा मिलती है। आप भी अनुभव करना, जो मैंने खुद अनुभव किया है। वो दुआ कमाएंगे बच्चे, पढ़ाई तो पढ़ेंगे ही, बहुत आगे जाएंगे, दुआओं के साथ पढ़ेंगे, अपने अंदर की आंतरिक विशेषताओं, शक्तियों को पहचान कर आगे बढ़ते जाएंगे। यह लक्ष्य है टच द लाइट का। टच द लाइट प्रोजेक्ट के अंदर जो सब्जेक्ट है, जैसे कि अनुशासन है, धैर्यता है, अच्छे बुरे की पहचान है, सदा मुस्कुराइए, जैसे फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, गम भुलाकर मुस्कुराना जिंदगी है, जीत कर मुस्कुराए क्या बड़ी बात है, हार कर मुस्कुराना जिंदगी है। ऐसे सब्जेक्ट जो टच द लाइट में है, जो बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है। आज के समय के अंदर हर एक की इच्छा रहती है मेरा बच्चा फर्स्ट आना चाहिए। अगर दूसरे का बच्चा फर्स्ट आता है तो हर माता पिता को आश रहती है मेरा बच्चा भी वहाँ होना चाहिए। हाँ, जरूर आपका बच्चा अगर थोड़े मार्क्स की वजह से पीछे होगा, लेकिन आज हम जिनको याद करते हैं, जो भी महान व्यक्तियाँ हो गई, जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी आविष्कारें हमें दी है, जो आज दुनिया चल रही है, जो हम सुख सुविधाएं भोग रहे हैं, वो किन की वजह से? आप देखेंगे उनकी मार्क्स इतनी नहीं थी, वो स्कूलों में इतने पढ़ने में इतने एक्टिव होशियार नहीं थे, लेकिन उन्हों के अंदर की जो विशेषताएं, कलाएं थी, उन्होंने जागृत की। किसकी दूसरे के साथ कैसे बात करना है, जो गुण है वो गुण उन्होंने जागृत किए। उस गुण के कारण, मूल्यों के कारण
वो आज हर एक के दिलों में जिंदा है। आज वो नहीं है, लेकिन हर दिल बोलता है मैं ऐसा बनना चाहिए, ये हो गए। इनका वर्णन आज स्कूलों में हो रहा है, हर बुक में है। ऐसे हम अपने बच्चे को ऐसा बनाएं। जरूर मार्क्स ज़्यादा आने चाहिए, हमारे भी आशा है हर बच्चा आगे जाए, जो पढ़ रहा है उसमें भी आगे बढ़े, लेकिन वो पढ़ाई के साथ साथ वैल्यूज़, उसके अंदर प्रेम, क्षमा, दया, करुणा, दूसरों को आगे बढ़ाने की भावना, हार में भी जीत का अनुभव करे। मैं पीछे नहीं हूँ, भल हार हुई है लेकिन उसमें भी मेरी ही जीत हुई है, दूसरों को जीता कर मैं आगे ही हूँ। वो भावना बच्चे के अंदर प्रकट हो, ये हम सबकी आशा है। तो आशा है कि आप सब भी हमारे साथ मिलके जो टच द लाइट प्रोजेक्ट हम हर स्कूलों में पहुंचाना चाहते हैं, वो आशा पूर्ण करने के लिए आप सबके साथ सहयोग की हमें बहुत आवश्यकता है। माता पिता, टीचर सभी मिल के हम कर सकेंगे, हम अकेले नहीं, आप सब हमारे साथ हो। हम जो स्कूलों में जा रहे हैं, 2 करवे है, बॉयज़ गर्ल्स, सार्वजनिक, उन स्कूलों के जो प्रिंसिपल श्री है, पूरा स्टाफ है, स्कूल के बच्चे हैं, वो सचमुच हमें बहुत अच्छा साथ सहयोग दे रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं। हाँ, हमारे स्कूल में ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छी तरह चलना चाहिए, हमारे बच्चे आगे बढ़े, कुछ सीखे। तो आप सब भी आशा है कि ज़रूर एक कदम और आगे बढ़ाए, हमें साथ सहयोग दे, तो हम टच द लाइट प्रोजेक्ट हर बच्चे तक पहुंचा सके, हर बच्चे का कल्याण हो, जो परमात्मा की आश है। परमात्मा यही चाहता है कि छोटा हो या बड़ा व्यक्ति हो, हर एक आत्मा खुश रहे, हर एक का कल्याण हो, सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और जीवन जीने की कला सीखे। तो जीवन जीने की कला सिखाता है टच द लाइट। तो आशा है आप सब हमें साथ सहयोग देंगे और हम सब मिल के यह प्रोजेक्ट को और ज़्यादा एक्टिव कर सकेंगे और बच्चों का आगे का भविष्य बहुत उज्जवल बना सकेंगे, एक अच्छा नागरिक बने, जो आप सबकी आशा है, पूरे देश की आशा है, दुनिया की आशा है। हर व्यक्ति चाहता है एक एक बच्चा अच्छा नागरिक बन के दुनिया के सामने प्रत्यक्ष हो, अपना तो कल्याण करे लेकिन पूरी दुनिया को साथ लेकर चले। तो ऐसे बच्चे बनाए हम सभी मिलके। तो इसके साथ आप सबको दिल से धन्यवाद है, आप सब ने हमें इतना साथ सहयोग दिया। और इसके साथ हम एक बहुत सुंदर गीत सुनेंगे और इस सदा मुस्कुराइए, और इस गीत के शब्द के साथ साथ आप अनुभव करेंगे, थोड़ा मन को शांत करके मेडिटेशन करेंगे। हम आओ मिलके एक बहुत अच्छा परमात्मा का सॉन्ग सुनते हैं। ओम शांति। सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो। यादों में प्रभु के है सच्ची खुशी, ये सेवा बड़ी है दुआओं भरी।
ये मुस्कान वरदान भगवान का, ये मुस्कान वरदान भगवान का। नाचो खुशी में नचाते रहो, सदा खुश रहो मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो। गाते रहो गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश